السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں، بادل پھٹنے کے واقعات اور سیلابی ریلوں میں 202 افراد جاں بحق۔ بنیر میں 155 افراد جاں بحق ہوئے، 20 لاپتہ۔ بنیر کی تحصیل ڈگر اور چکرزئی میں برساتی نالوں میں شدید طغیانی۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی میں 21 افراد جاں بحق۔ ضلع بٹگرام اور مانسہرہ کے سرحدی علاقے نیل بند میں کلاؤڈ برسٹ سے 15 افراد جاں بحق۔ کئی مکانات سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مانسہرہ میں 14 افراد جاں بحق۔ سوات کی تحصیل مٹا، کبل اور بحرین میں طوفانی بارشوں سے برساتی نالوں میں شدید طغیانی، 11 افراد جاں بحق۔ آزاد کشمیر میں 2 روز سے جاری طوفانی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ وادی نیلم اور جہلم کے مختلف علاقوں میں پہاڑی ندی نالے بفر گئے۔ حادثات میں ایک ہی گھر کے 6 افراد سمیت 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 7 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد رتی گلی میں پھنسے 700 سے زائد سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ زلزل جھیل کا ایک بند کا نصف حصہ ٹوٹ گیا۔ دریائے جہلم اور دریائے نیلم میں سیلاب، دریاؤں کے قریب آبادیوں کو خالی کروا لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری۔ گلگت بلتستان میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں۔ ضلع غزر کے درجنوں گاؤں میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب نے تباہی مچا دی، سینکڑوں رہائشی بے گھر۔ چٹور گھنڈ اور دائن کو ملانے والا واحد معلق پل سیلاب کی نظر، ہزاروں افراد پھنس گئے۔ گاؤں خلطی میں 6 افراد سیلاب کی زد میں آ گئے۔ سکردو شہر میں بجلی اور پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے شہریوں کی مشکلات کا سامنا۔ شگر میں رابطہ پل، زرعی اراضی سیلاب سے متاثر، 1 شخص جاں بحق، 10 افراد زخمی۔ گانچھے میں ریلے سے بڑے پیمانے پر تباہی، درائے مشبروم کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، پانی گھروں میں داخل۔ چلاس میں بٹوگا، تھرو نالا، بنر نالا، بابو سر پر سیلابی صورتحال۔ سونیول کوٹ میں رہائشی مکانات میں دریائے سندھ کا پانی داخل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں، سیلابی صورتحال کے جائزے کے لیے ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی وزیر اعظم کو بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو ریسکیو ریلیف آپریشن میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء قرونوش اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچایا جائے۔ ترجیحی بنیادوں پر امدادی سامان کو ٹرکوں کے ذریعے فوری بھیجا جائے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کا ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیاں تیز کریں، متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، زخمیوں کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کی جائیں، جاں بحق افراد کے بلندیہ درجات اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں حالیہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈز کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وفاقی حکومت ادویات، خیمے اور اشیاء قرونوش بھیج رہی ہے۔ وزیر اعظم کے این ڈی ایم اے کو خیبر پختونخوا حکومت کی معاونت کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے سے 24 گھنٹے رابطے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں خصوصی سیل قائم۔ وزیر اعظم سیلابی صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ ہیں اور امدادی کارروائیوں کے لیے ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ رواں مانسون کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 3 مرتبہ این ڈی ایم اے کا دورہ کیا۔
हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम इदारे अपने वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार। मुश्किल घड़ी में सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये वक्त सियासत करने का नहीं है। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर मुतासिरीन की मदद करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2015 और 2022 में भी कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। मुतासिरीन को इमदाद फराहम करने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। पाक फौज और फ्रंटियर कोर के इमदादी दस्ते सवात और बाजौड़ में भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने स्कूल के बच्चों को पुश्त पर उठाकर महफूज मकाम पर पहुंचाया। बाजौड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फ्राहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है। बुनेर, बाजौर और बटाग्राम शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हुकूमत की जानिब से बाजौर और बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद बारिशों का हालिया सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां तेज की जाए। सियाती मकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के दौरान गिरकर तबाह। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में अमले के 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल सोग का ऐलान। सूबे में कौमी परचम सरनिगो रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शोहदा के दर्जात की बुलंदी। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क पर काम की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में ताख़ीर पर मुतालिका हुकाम की सरजनिश। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टेक्नोलॉजी पार्क इब्तदाई हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करते हुए आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंसूबा 23 मार्च 2025 को मुकम्मल होना था। तमाम जिम्मेदारान मंसूबे की तकमील के लिए कोशिशें तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म। चीन के गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड की भारी सरमायाकारी। सनती तरक्की और माशी इस्तेहकाम का एक और अहम मंसूबा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी इक़्तिसादी जोन के जरिए 5 साल में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। $40 करोड़ की बरामदात मुतवक्के। ख्वाहिश है चीनी सरहदें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आज़म की चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हुआंग वाइगो की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। सियासी, इक्तसादी और सकाफती शोबों में ताउन मजबूत करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म को सफर, तिजारत और राब्तों को आसान बनाने के लिए दोनों मुल्कों की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम से आगाह किया गया। दोस्ती के तारीखी बंधन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फौज के वहशियाना हमले। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज की अंधाधुन फायरिंग से खुराक के मुंतजर 7 फलस्तीनी भी शहीद। भूख से नडाल मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत से जाम हक अफराद की तादाद 239 हो गई। खुराकी अदम दस्तयाबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,776 हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में बादल फटने और शदीद बारिशों के बायस सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही।
सैलाब में कम से कम 56 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता, सैकड़ों हिंदू यात्री सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। यौम स्याह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। मकसद जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। मुलाकात यूक्रेन में जारी 3 साला जंग के खात्मे के लिए हो रही है। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो मुस्तकबिल में अमन की जामिन होगी। जंग के खात्मे से कबल रूस के साथ किसी किस्म के तिजारती मुआहदे मुमकिन नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप। सिंसिनाटी ओपन टेनिस, इटली के जेनिक सिनर और अमेरिका के बेन शेल्टन के सेमीफाइनल में रसाई। दिफाई चैंपियन जेनिक सिनर की कनाडा के फेलिक्स एलियासिम को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। बेन शेल्टन की जमहूरियत चेक के जेरी लहिका के खिलाफ कामयाबी। Great leap. Polinia's there. Chevalier onto the bar, but turned in. Mickey van der Ven in Udine. That for a long time. Romero. और यूएफा सुपर फुटबॉल कप, फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लिश क्लब टॉटनहम हॉटस्पर को शिकस्त। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पीएसजी की 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी। Gonzalo Ramos with the equalizer. हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। अब होगा सबका शुमार। PSER, एक नई सोच, एक नया सफर। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे जामे और सबसे इनकलाबी मंसूबा, जो हर फर्द, हर घराने और हर तबके को एक नई उम्मीद, नई शनाख्त और नए मौके देने जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग पंजाब भर के तमाम तबकात से वाबस्ता खानदानों का एक जामे और फाल डेटाबेस मरतब करने के लिए PSER के तहत घर घर सर्वे कामयाबी से जारी है। याद रखें, हुकूमत पंजाब के तमाम फलाही मंसूबों से मुस्तफीद होने के लिए खानदान के हर फर्द का PSER में इंदिराज लाजमी है। तो आए आगे बढ़ें और PSER में अपनी शिरकत को यकीनी बनाकर तरक्की, खुशहाली और खुद मुख्तारी के सफर का हिस्सा बने। ये आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी। पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत को यकीनी बनाने की हिदायत। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मसर अब्बास। मुल्क में हालिया बारिशों पर सैलाब की सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि NDMA खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और PDMAs के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम तर ताउन फराहम करे और इस हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं।
वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों के जरिए फौरी तौर पर भेजा जाए। सैलाब से मुतासर इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर बात की। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशिया खुर्दनोश भेज रही है। इजलास में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क के बालाई हिस्सों में क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से होने वाले नुकसानात का जायजा पेश करने के साथ साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर भी पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने के वाक़यात और सैलाबी रैलों में 202 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाह। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ है, जहां बादल फटने और तूफानी बारिशों से सैलाबी रैला आया। सैलाबी रैले में कई मकानात बह गए। रेस्क्यू और जिली इंतजामिया के जराये के मुताबिक बुनेर में 155 अफराद जा बहक हुए हैं। अभी भी काफी तादाद में लोग लापता हैं। कबायली जिला बाजौड़ की तहसील सलारजई के इलाके जिब्राड़ी में रात गए बादल फटने और शदीद बारिशों के नतीजे में मुतादिद अफराद सैलाबी रैले में बह गए। PDMA और जिली इंतजामिया के मुताबिक मजमूई तौर पर 21 अफराद जा बहक हुए हैं। जिला बटाग्राम और मनसहरा के सरहदी इलाके नीलबंद में भी बादल फटने का वाकया रूनुमा हुआ है, जिससे कई मकानात सैलाबी रैले में बह गए। जिले इंतजामिया ने 16 अफराद की जाबहक होने की तस्दीक की है। मनसहरा के इलाके डेरी हलीम और बेलबंग में बादल फटने के वाकयात हुए हैं। PDMA के मुताबिक 23 अफराद जाबहक हुए हैं, जबकि अभी तक कई अफराद लापता हैं। शांगला के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से 23 अफराद जाबहक हुए हैं। स्वात के इलाकों मट्टा, कबल और बहरैन में तूफानी बारिशों से बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी आई। बारिशों से कई मकानों की छतें गिर गई। इन वाक़यात में 11 अफराद जाबहक होने की तस्दीक हो चुकी है। बाजौड़ के बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर कबायली जिला मोहम्मद के इलाके पंडियालई में खराब मौसम के बाइस हादसे का शिकार हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान व सिफरान इंजीनियर अमीर मुकाम ने स्वात के उन इलाकों का दौरा किया जो शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए। इंजीनियर अमीर मुकाम ने सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों के रिहायशियों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा लोगों को वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में यौम सोग मनाने और कौमी परचम सरनिगू रखने का ऐलान किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अवाम किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की इतला, मौसमी सूरत हाल से आगाही और मालूमात के लिए फ्री हेल्पलाइन 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा का जिला बुनेर हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। तफसील बताएंगे अख्तर खान। PDMA खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बुनेर में हुआ है, जहां बादल फटने और तूफानी बारिशों से सैलाबी रेला आया। सैलाबी रेले में कई मकानात और दुकानें बह गई। रेस्क्यू और दिल्ली इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक अभी तक 91 अफराद की लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों तक पहुँचा दी गई है, जबकि दर्जनों अफराद अब भी लापता है। दिल्ली इंतजामिया के हुक्काम का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल पीर बाबा के इलाके में पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट से पैदा हुई, जिसकी जद में दर्जनों मकानात और दुकानें आई। क्लाउड बर्स्ट से सबसे ज्यादा गोकंद का इलाका मुतासिर हुआ है। लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुनेर वसीम अख्तर के मुताबिक रेस्क्यू का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है और अभी तक रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मुतासिरा इलाकों तक जाने वाली सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है और मुतासिरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचा दिया गया है। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। उधर आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ है। नुकसानात और रेस्क्यू सरगर्मियों से मुतालिक बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। दौरों से जारी मूसलाधार बारिशों ने आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती इलाकों में तबाही मचा दी। वादी नीलम और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में आज़ाद कश्मीर भर में मुख्तलिफ हादसात में एक ही घर के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए।
STMA की जानब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में 31 घर मुकम्मल तबाह हुए, 23 को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 15 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि मुतादिद छोटे पुलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और दर्जनों मवेशी हलाक हो गए। वादी नीलम में रत्ती गली में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में नाले में तुगयानी की वजह से फंसे 700 से जायद सयाहों को रेस्क्यू 1122 और मकामी रजाकारों ने 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करते रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने पर इंतजामिया और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा और एमरजेंसी सर्विसेज देने वाले इदारों को मजीद फाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। रात को जो गुज़श्ता 2 दिन की बारिश हुई उसमें तकरीबन 800 से जायद जो हमारे टूरिस्ट थे वो रत्ती गली में वो ट्रैप हो गए, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की वजह से नीचे जब्बा के मुकाम से 1.5-2 किलोमीटर सड़क बह गई। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैं भी मौजूद था। कल 14 अगस्त के दिन भी हमें इमरजेंसी सारे दफातर खोलने पड़े। वो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको चेयर प्राइम मिनिस्टर ने किया, सीनियर मिनिस्टर ने किया, और आज अभी तक की इतला के मुताबिक तकरीबन वो सारे टूरिस्ट जो हैं 800 के करीब उनको दुआरियां पहुंचा दिया गया है। वहाँ उनकी रिहाइश और खाने का जो है वो बंदोबस्त हुकूमत की जानिब से, SDMA की जानिब से किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात की रोशनी में दरियाओं के करीब वाक़ आबादियों को खाली करवा लिया गया है और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को एक बार फिर खबरदार किया गया है कि वो खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मूसलाधार बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान भी मुतासिर हुए हैं। जिला गजर के 2 दर्जन से ज्यादा देहात ज़ेर आब आने से जिले हेडक्वार्टर गाहकूद से तहसील अशकोमन और तहसील यासीन का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से गुज़िश्ता रोज़ से अब तक मजमूई तौर पर 10 अफराद जाँ बहक जबकि 5 ज़ख्मी हो चुके हैं। तहसील गोपस के गाँव खलती में सैलाबी रैले की जद में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद बह गए। एक 7 साला बच्चे को ज़ख्मी हालत में निकाल लिया गया। तहसील अशकोमन के गाँव दाइन के भी 2 अफराद सैलाबी पानी में बहकर जाँ बहक हो गए। गाहकूद से अशकोमन जाने वाला रास्ते को कम से कम 12 मकामात पर बंद है, जिन्हें खोलने के लिए भारी मशीनरी काम कर रही है। दरियाई शेवक में पानी की सतह बुलंद होने से शाहराह सियाचिन के मुख्तलिफ मकामात पर दरिया का पानी दाखिल हो गया। दरिया मशबरूम में पानी सतह बढ़ने से गौर से हफाजती बंद टूट गया और पानी आबादी में दाखिल हो गया। कांचे के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई कटाव से राब्ता सड़कें ब्लॉक, जबकि बिजली के खंभे गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई इलाकों में ज़राई ज़मीनें ज़ेर आब आने से फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से खुराक और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मुतालिका इदारे इमदादी सरगर्मियों को तेज करें, मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत ने जाँ बहक अफराद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए हादसे में शहीद होने वाले पायलट और अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। सदर ममलिकत ने कहा कि हादसे में शहीद होने वाले कौम के हीरो हैं। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलिकत ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना, सवात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल और हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और अद्वियात की फराहमी जारी है। तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। पाक फौज दिफाए वतन के साथ साथ कुदरती आफात में भी अवाम के शाना बशाना खड़ी नजर आती है। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज के जवान इंसानी खिदमत की आला मिसालें कायम करते हैं। पाक फौज की पेशावराना महारत
और जज्बे कुर्बानी की बदौलत हजारों जानें महफूज बनाई जाती हैं। पाक फौज की टीमें सवात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि राशन और अद्वियात की फराहमी भी बजरिए हेलीकॉप्टर की जा रही है। पाक फौज के जवानों ने सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए अवाम और स्कूल के बच्चों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सवात के शदीद सैलाब में पाक फौज के जवानों ने बर वक्त और जुरतमंदाना इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और पानी में घिरे हुए इलाकों से मुतासरा अफराद को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाक फौज का जवान स्कूल के बच्चे को अपनी पीठ पर उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहा है। पाक फौज के जवानों के इस जज्बे ने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। ये जज्बा साबित करता है कि पाक फौज के जवान हर हाल में अवाम की मदद के लिए तैयार रहते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम सैलाब ज़दगान को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कुदरती आफात से निपटने के कुदरती इदारे NDMA को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों से मुसलसल रब्ता रखने और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत की गई हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में एक खुसूसी सेल भी कायम किया गया है जो NDMA से 24 घंटे राब्ते में है। रवा मानसून के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा NDMA का दौरा करके ज़ाती तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ इक़दाम का जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम इदारे अपने वसाइल पर रिकार ला रहे हैं। इंसानी जानें महफूज बनाने के लिए इक़दाम के साथ NDMA के पेश की आगाही निज़ाम से खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को बाकायदगी से मालूमात फराहम की जा रही हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि NDMA का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 24 घंटे फ़ाल है और सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से होने वाले कीमती जारी नुकसान के बायस वज़ारत इत्तलात के ज़रिए एहतमाम F9 पार्क इस्लामाबाद में 16 और 17 अगस्त को होने वाला प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया है। ये फैसला रिलीफ सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज रखने के पेश नज़र किया गया है। NDMA ने खबरदार किया है कि दरियाए स्वात में मुंडा हेडवर्क्स पर पानी का अखराज बढ़कर 1,12,005 क्यूसिक हो गया है, जिसे हाई लेवल फ्लड का दर्जा दिया गया है। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए NDMA के माहिर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तैयब शाह का कहना है कि बारिशों से कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मानसून का 7वां सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जो कि 15 अगस्त से 22 अगस्त तक बारिशें होंगी। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड रीजन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलाई पंजाब और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा है। और आज से आने वाले जो मानसून का स्पेल है, इसमें हम मानसून की शिद्दत में इजाफा देखेंगे। बेला के मकाम पर भी इस वक्त मीडियम से हैवी फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं। काला बाग और चश्मा में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सैलाबी सूरत हाल मीडियम से हाई लेवल की सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। NDMA के सूबाई कोऑर्डिनेशन सेल के डिप्टी मैनेजर अमर जलील का कहना है कि मौसमी हालात के पेश नज़र शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की ज़रूरत है। उन्होंने NDMA और इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। आवाम से गुजारिश है कि किसी भी नदी नाले के करीब ना जाएं, अपने आप को और अपने घर वालों को किसी किस्म की मुसीबत में ना डालें और जितना सेफ़ ट्रैवल किया जा सकता है आप लोग सेफ़ ट्रैवल कीजिए। NDMA की एडवाइजरीज़ हैं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने एक एंटीसिपेटरी एक्शंस के ऊपर गाइडलाइंस दी हुई हैं, आप लोग उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क पर काम की सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार करते हुए मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मनसूबे का दौरा किया और तामीराती काम में ताख़ीर पर मुतल्लिका हुकाम की सरजनिश की। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पार्क इब्तदाई हिदायत के मुताबिक दी गई मुद्दत में मुकम्मल करते हुए आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़ेर तामीर IT पार्क का ये तीसरा दौरा था। ये मनसूबा 23 मार्च 2025 को मुकम्मल होना था। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम जिम्मेदारान इस मनसूबे की तकमील के लिए कोशिशें
कोशिशें तेज करें। याद रहे इस मंसूबे पर PTI दौरे हुकूमत में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुंतखब होते ही IT पार्क मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो दी और काम का आगाज कराया। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि इस्लामाबाद IT पार्क 2 ज़ेर ज़मीन, ग्राउंड और 9 बालाई मंजिलों पर मुश्तमिल है। दफातर, इंक्यूबेशन सेंटर के साथ बिजनेस सपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेटा सेंटर, ऑडिटोरियम और पार्किंग इस मंसूबे का हिस्सा हैं। IT पार्क का मकसद नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, माशी नमू को बढ़ाना, आलमी IT मुसाबकत बढ़ाना और डिजिटल तकसीम को खत्म करना है। सनती तरक्की और माशी इस्तेहकाम के लिए एक और अहम मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीन के गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। चैलेंज ग्रुप खुसूसी इक़्तिसादी जोन के जरिए 5 साल में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी और इसके नतीजे में $40 करोड़ की बरामदात मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म से चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के वफ़द ने चेयरमैन हुआंग वैगो की सरबराही में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राहदारी के तहत सनती तरक्की के अमल को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखती है। दोनों मुल्क हर मुश्किल में एक दूसरे की शाना बशाना रहे हैं। इस दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफ़ा बाइस इत्मीनान है। हमारी ख्वाहिश है कि चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी मार्केट पर चैलेंज फैशन ग्रुप के एतमाद को सराहते हुए कहा कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन में खैर मकदम करते हैं। इस इक़दाम से टेक्नोलॉजी की मुंतकली, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने खुसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से चैलेंज ग्रुप को तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस का चीन में जल्द इनेकाद किया जाएगा, जिससे निजी कारोबारी इदारों को इश्तराक का मौका मुयस्सर आएगा। वफ़द के सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि चैलेंज फैशन ग्रुप पाकिस्तान में अब तक $1.70 करोड़ की सरमायाकारी कर चुका है। पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कायम की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में इजाफे और ताउन के लिए लाहे अमल पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस्लामाबाद में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ काहिरा में D8 सरबराह इजलास के मौके पर नतीजा खेज गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान दो तरफा तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने का ख्वाहां है। हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म को नकलो हमल, तिजारत और रवाबित आसान बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जिम्मेदारियों की अंजामदही में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के पुलिस थानों और चेक पोस्टों पर दहशतगर्दों के हमलों की शदीद मजम्मत की और कामयाब कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को हलाक करने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जुर्रत व बहादुरी को सराहा। उन्होंने शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी बुलंद दर्जात की दुआ और अहल खाना से इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। उन्होंने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपनी शुजाअत और पेशा वराना सलाहियतों से भारतीय सरपरस्त दहशत गर्दी के हमलों नाकाम बनाए। कौम अपने बहादुर सिपाहियों और पुलिस जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न सरदार अवैस अहमद लगारी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पावर डिवीज़न से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। इस मौके पर मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रेलवे के वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर पेट्रोलियम डिवीज़न से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली 263 शख्सियात को कौमी एवार्ड्स देने की मंजूरी दी है। ये एवार्ड्स आइंदा साल 23 मार्च को दिए जाएंगे। साइंस, तालीम, मेडिसिन, सहाफत, अदब, फ़नून लतीफ़ा, खेल, समाजी बहबूद और अवामी खिदमात की शोबों में ये एवार्ड्स दिए जाएंगे।
پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سابق ڈائریکٹر شازیہ سکندر کو صحافت کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ شازیہ سکندر 1981 کی دہائی میں کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد پی ٹی وی نیوز سے وابستہ ہوئیں۔ انہوں نے رپورٹنگ کے شعبے کو ترجیح دی اور اپنے بہتر اسکرپٹ اور عمدہ ادائیگی سے منفرد مقام بنایا۔ انہوں نے خواتین کی جبری شادی، امتیازی قوانین، صنفی امتیاز اور عوامی مسائل کو خصوصی رپورٹس کے ذریعے اجاگر کیا۔ شازیہ سکندر نے عالمی سطح پر کئی اہم ایونٹس کے ساتھ متعدد ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات کے دوروں کی کوریج کی۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد پی ٹی وی نیوز کی ٹیم شازیہ سکندر کی قیادت میں فوری طور پر مظفر آباد پہنچی اور تباہ کن صورتحال کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا۔ شازیہ سکندر مختلف انتظامی عہدوں پر بھی فائز رہیں۔ انہوں نے شعبہ خبر میں ڈائریکٹر نیوز کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ وہ ادارے میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی سربراہ بھی رہیں۔ شازیہ سکندر انتہائی پروفیشنل ہونے کے ساتھ بہترین ساتھی ورکر، ملنسار، انسان دوست اور دلاویز شخصیت تھے۔ شازیہ سکندر کے تمغہ امتیاز کے قومی ایوارڈ کی منظوری پاکستان ٹیلی ویژن اور شعبہ خبر کے لیے بالخصوص فخر کی بات ہے۔ 12 دسمبر 2019 کو پی ٹی وی سے ریٹائر ہوئیں۔ شازیہ سکندر کو پی ٹی وی کی جانب سے 2 نیشنل ایوارڈز اور 1 خواتین ٹائم ایوارڈ عطا کیا گیا۔ سینٹ نے یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے متفقہ قرارداد کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ اجلاس کی تفصیل ڈاکٹر عمر ملک سے۔ سینٹ میں یوم آزادی کے حوالے سے متفقہ قرارداد وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان آزادی کی 78ویں سالگرہ کے موقع پہ تحریک آزادی کے اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ قرارداد میں قوم کو مارکہ حق میں زبردست کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملکی سلامتی، آزادی اور خود مختاری کے تحفظ میں کردار ادا کرنے والے تمام پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عید میلاد النبی بھرپور مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے، سرکاری اور نیم سرکاری عبارتوں میں چراغاں کیا جائے۔ قرارداد میں اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی کا شعار بنایا جائے گا۔ قرارداد سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے پیش کی۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر جام کمال خان نے کہا کہ حکومت نئی ٹیرف پالیسی متعارف کروانے جا رہی ہے۔ پہلی بار ٹیرف پالیسی انڈسٹری کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے بنائی جا رہی ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیرف پالیسی سے صنعت کو فروغ ملے۔ نئی ٹیرف پالیسی میں 900 آئٹمز پر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ 300 آئٹمز کے ٹیرف میں کمی کی گئی ہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بلوچستان کے چند اضلاع میں دہشت گردی کے خطرے کے تحت موبائل انٹرنیٹ سروس پر 6 اگست سے عارضی پابندی عائد کی گئی ہے، جو 31 اگست تک برقرار رہے گی۔ سینٹ اجلاس کی کارروائی پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، پنجاب ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت اور دور دراز علاقوں کے لیے واٹر پمپ لگانے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعض منصوبوں کی بروقت تکمیل نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی کیا۔ انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے 30 جون 2026 کی ڈیڈ لائن دی اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے ہر شہر میں بیوٹیفیکیشن کے 122 منصوبوں کی بروقت تکمیل بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ پینے کے پانی کی عدم دستیابی کی عوامی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دورہ جاپان کے پہلے مرحلے میں وفد کے ہمراہ تھائی لینڈ پہنچ گئی ہیں۔ بینکاک ایئرپورٹ پر تھائی لینڈ میں پاکستانی سفیر رخسانہ افضال اور اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر تھائی حکومت کے اعلیٰ حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ بین الاقوامی عدالت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کی سختی سے پاسداری کرنا ہوگی۔ رائٹرز میں شائع کی جانے والی بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کی تفصیل اریبہ ذیشان کی اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی عدالت نے سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بھارت کے ناپاک عزائم پر کاری ضرب لگائی، جبکہ مودی سرکار کو عالمی سطح پر ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیگ میں واقع مستقل ثالثی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ بھارت مغربی دریاؤں پر ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے صرف اس حال میں تعمیر کر سکتا ہے جب ان کا ڈیزائن معاہدے میں دی گئی وضاحتوں کے عین مطابق ہو۔ 1960 میں عدالت نے واضح کیا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے لیے مختص ہے، جبکہ بھارت کو مشرق کی طرف بہنے والے 3 دریا ملے تھے۔ پاکستان کو خدشہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ڈیزائن میں تبدیلی اس کی پانی کی فراہمی متاثر کر سکتی ہے، جس پر اس کے 80% ذرات اور ہائیڈرو پاور کا انحصار ہے۔
بین الاقوامی مستقل ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اپنا فیصلہ دیا. اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ بھارت ان منصوبوں کو معاہدے کے مطابق ہی بنا سکتا ہے. خلاف ورزی کی ہرگز گنجائش نہیں. انٹرنیشنل عدالت کا جو فیصلہ پاکستان کا میں آیا ہے وہ بھی بہترین تھا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اور ورلڈ بینک نے بھی جو پاکستان کو سپورٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کو بحال کروایا. پاکستانی موقف کو تسلیم کرتے ہوئے اس معاہدے کو ختم کرنے کے اوپر انڈیا کو سرزنش کر گئی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پاکستان کے غیر محدود استعمال کے لیے دریاؤں کا پانی بہنے دینا ہوگا. دفتر خارجہ کے مطابق یہ فیصلہ حتمی ہے اور دونوں ملکوں پر اس کی پابندی لازم ہے. اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. پاکستان کی معاشی میدان میں ایک اور کامیابی، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ مثبت سے مستحکم قرار دی تھی. تفصیل بتائیں گے سید جہانگیر علی. موجودہ حکومت کی معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کا اعتراف نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سطح پر بھی کیا جا رہا ہے. عالمی جریدے موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی ہے. کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا معاشی پالیسی کی سمت درست ہونے کا ثبوت ہے. موڈیز کے مطابق پاکستان کا آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کر دیا گیا. موڈیز کی رپورٹ میں IMF پروگرام کے تحت اصلاحات میں پیش رفت اور بیرونی بفرز اور مالیاتی استحکام کا بھی حوالہ دیا گیا. موڈیز کی جانب سے پاکستان کے آؤٹ لک کو مثبت سے مستحکم کرنے کا براہ راست اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے میں مزید مدد ملے گی. اس سے ہمارے جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کے دروازے ہیں وہ اور کھل جائیں گے. ہم لوگ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس کے اندر بہتر طریقے سے ہم لوگ ریز کر سکتے ہیں، پینڈا بانڈز کی طرف جا سکتے ہیں. عالمی جریدے موڈیز کی رپورٹ کے مطابق ملک میں ایکسٹرنل پوزیشن بہتر ہونے سے ریٹنگ میں بہتری آئی ہے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ریاست جموں کشمیر میں بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا کیا؟ آزاد کشمیر میں نکلنے والے جلسے، جلوسوں اور ریلیوں کی تفصیل عدیل احمد خان سے. پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مرکزی ایوان صحافت مظفر آباد کے سامنے یوم سیاہ کے سلسلے میں احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے شرکت کی. یوم سیاہ کی ریلی میں وزراء اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ 15 اگست کشمیری عوام کے لیے بھارت کے قبضے، ظلم و جبر اور وعدہ خلافی کی علامت ہے. مقررین نے کہا کہ کشمیری عوام 15 اگست کو بھارتی تسلط کے خلاف احتجاج کے طور پر منا کر دنیا کے منصفوں سے سراپا سوال ہوتے ہیں کہ کشمیری عوام سے ان کی آزادی، ریاست اور بنیادی حقوق چھیننے والا ملک بھارت کس منہ سے یوم آزادی منا رہا ہے. بھارت کا یوم آزادی ہے اور کشمیری بیس کیمپ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کشمیری اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی لوگوں کی آزادی، ان کا حق خود ارادیت، ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق چھین کر بھارت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا کہ وہ یوم آزادی منائے. جب تک کشمیر کے مسئلے کو آزاد نہیں کیا جائے گا، اس کو حل نہیں کیا جائے گا، یہ دنیا جو ہے جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے. ہندوستان کو جب تک وہ کشمیریوں کو آ کے خود ارادیت نہیں دیتا، نہ یوم جمہوریہ منانے کا حق ہے اور نہ ہی یوم آزادی منانے کا حق حاصل ہے. ریلی کے شرکاء نے مرکزی ایوان صحافت سے علمدار چوک تک مارچ کیا. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد. بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام اسلام آباد میں سیمینار ہوا. حریت رہنما محمد فاروق رحمانی، الطاف حسین بانی، آزاد کشمیر کے سابق وزیر پیر علی رضا بخاری، گلگت بلتستان کے معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ، اقلیتی رہنما نوید جیوا، بیرون ملک مقیم کشمیری رہنما آصف جلال، غزالہ حبیب اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. مقررین نے کہا کہ بھارت کا جموں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ناقابل قبول ہے. بھارت جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن امناً وہاں اقلیتوں کو آزادی حاصل نہیں. مودی سرکار کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے. مقررین نے کہا کہ مضبوط اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان ہی کشمیریوں کے بہترین مفاد میں ہے. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ جموں و کشمیر کی فضاؤں میں سوگ اور سناٹے کا راج ہے. مشال ملک اپنے ایک پیغام میں کہا ہے، خوفزدہ بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر میں آج بلیک آؤٹ کر رکھا ہے. کشمیری اس کے قبضے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جہاں ان کے تمام بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں. پورا علاقہ جیل میں بدل چکا، عوام کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں، تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کچھ بھی کر لے آزادی کی شمع کو بجھا نہیں سکتا. وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے.
कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया, जिसका मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से इनकार के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराना था। KMS के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने भारत मुखालिफ मुजाहरे से रोकने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौरी छावनी में तब्दील कर दिया था। भारत के यौम आज़ादी की नाम नहाद मरकजी तकरीब के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अहम मकामात पर रुकावटें खड़ी थीं, ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात थे। ड्रोन कैमरों के जरिए भी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। भारतीय फोर्सेस एहलकार गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ले रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर ताकत के बल पर कब्जा कर रखा है, लिहाजा इसे इलाके में यौम आज़ादी के इनेकाद का कोई हक हासिल नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से बयान में कहा कि भारत जमहूरी मुल्क होने का दावा कर रहा है, लेकिन इसने कश्मीरियों के तमाम जमहूरी हुकूक सल्ब कर रखे हैं और इन्हें हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत के तमाम तर चीरा दस्तियों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं और वो शोहदा की अजीम मिशन को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। जम्मू में ज़िला किश्तवाड़ के चासोती गांव में बादल फटने से 65 अफराद हलाक, जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में ज़्यादातर हिंदू यात्री शामिल हैं। इनमें भारतीय पैरामिलिट्री के 2 एहलकार भी शामिल हैं। दर्जनों हिंदू यात्री अब भी लापता हैं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मियों में से अक्सर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के हममंसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में यूक्रेन में जारी 3 साला जंग के खात्मे के लिए हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को जाहिर की है कि रूसी सदर यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए रजामंद हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो मुस्तकबिल में अमन की जामिन होगी। उन्होंने कहा कि जंग के खात्मे से कबल रूस के साथ किसी किस्म के तजारती मुआहदे मुमकिन नहीं है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान गजा पर काबिज इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा में बच्चों और ख़वातीन समेत इमदाद के मुंतज़िर 7 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं, जबकि भूख से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक भूख और ग़िज़ाई किल्लत से जहाँ तक होने वालों की तादाद 239 हो गई है, जिनमें 106 बच्चे भी शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की मजमूई तादाद 61,800 के करीब हो गई है। इलाके में खुराक की अदम दस्तयाबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम 15 ई खिदमत मराकज़ एक ही छत तले शहरियों को 160 से ज़्यादा सरकारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अपनी नोयत के साहम मंसूबे के बारे में बता रही हैं बरदा सलीम। पंजाब के आवाम के लिए सरकारी खदमात के हसूल को आसान बनाना पंजाब हुकूमत का अज़्म है और इस मकसद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुतअद्दिद इनकलाबी मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें ई खिदमत मराकज और मरियम के दस्तक अहम तरीन है। तकरीबन 15 टोटल हमारे ई खिदमत मराकज है, जो कि 14 डिफरेंट जिलों में। अब हम हर DC ऑफिस में भी एक आस्ता से इसको खोल रहे हैं हम लोग। उसके अंदर तमाम लोग जो है मल्टीपल सर्विस, कोई 160 प्लस सर्विसेज हैं जो कि वहाँ पे सर्विस हमने ले आए। तकरीबन कोई 90 लाख के करीब लोग जो हैं अब तक इन ज़िलों में, इन 14 जिलों के अंदर सर्विसेज ले चुके हैं वहाँ पे आकर। लाहौर के अलावा रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, चकवाल, लोधरा, सयालकोट, टोबा टेक सिंह, रहीम यार खान में भी ई खिदमत मराकज़ फाल हैं, जहाँ ज़िले इंतजामिया, पुलिस, नादरा एक्साइज, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट समेत 20 महकमों की सहूलियात इन खिदमत मराकज़ में फराहम की जा रही हैं। मरियम की दस्तक मंसूबा शहरियों को उनकी दहलीज पर सरकारी खिदमत फराहम कर रहा है। मरियम की दस्तक के नाम से हमने एक और सर्विस शुरू की, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक है कि आपको फैसिलिटेटर मोड में आप खुद नहीं जाना चाहते दफ्तर, सरकारी दफ्तर में, या आप इवन खिदमत मरकज़ भी नहीं आना चाहते, आप घर बैठे सर्विस चाहते हैं, तो आप 1202 पे कॉल करते हैं, या आप दस्तक की मोबाइल ऐप पे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। मरियम की दस्तक के अंदर तक कोई हमारे पास 8 लाख प्लस लोगों ने सर्विसेज अप्लाई की है, उसमें से हम कोई 6.5 लाख प्लस सर्विसेज हम दे चुके हैं। ई खिदमत मराकज़ और मरियम के दस्तक जैसे मंसूबों से न सिर्फ शहरियों की जिंदगियों में आसानी आई है, बल्कि ये आवाम दोस्त मंसूबे वज़ीर आला पंजाब के ई गवर्नर्स के विजन का आकाश भी हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगोरी लो कर्फू ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग से मुश्तरका राह अमल बनाने में मदद मिलेगी। अमरीका की जानिब से BLA और मुजीब ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 तरफ़ा ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर भी मुलाकात में मौजूद थे।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से एंग्रो फर्टिलाइजर्स के CEO अली राठौर ने मुलाकात की, जिसमें खाद के बिला तातुल फराहमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने दूर दराज इलाकों में खाद की आसान फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि सप्लाई चेन में शफाफियत और डिजिटाइजेशन से मार्केट मुस्तहकम होगी। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पठवार और शिमाल मशरकी पंजाब के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासर होने का खतरा है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, जनूब मशरकी सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पठवार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिफाई चैंपियन इटली के जैनिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के बेन शेल्टन ने भी लास्ट 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका में जारी इवेंट्स के क्वार्टर फाइनल में जैनिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स ओयो-एलियासिम को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। सिनर ने ओयो-एलियासिम को 6-0 और 6-2 से बासानी मात दी। सेमीफाइनल में जैनिक सिनर का मुकाबला क्वालिफायर फ्रांस के टेरेंस एतमाने से होगा। एतमाने ने डेनमार्क के होल्गर रियॉन को 6-2 और 6-3 से हराकर अपसेट किया। अमेरिका के बेन शेल्टन ने जमहूरिया चेक के जरी लहिका के खिलाफ 6-4 और 6-4 से कामयाबी समेटी। लास्ट 8 में बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव मध्य मुकाबले थे। अमेरिका की कोको गॉफ और इटली की जैस्मिन पॉलिनी ने सिंसिनाटी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओहायो में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में गॉफ ने इटली की लूसिया ब्रोंजेटी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। गॉफ ने ब्रोंजेटी को सिर्फ 1 घंटा और 19 मिनट के मैच में 6-2 और 6-4 से बासानी जेर किया। एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इटली की जैस्मिन पॉलिनी ने जमहूरिया चेक की बारबोरा क्राजिकोवा को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। पॉलिनी ने क्राजिकोवा के खिलाफ 6-1 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। पोलिश को पैमा जोड़ी माया कार्डिल और डेनिस उरूबको ने नांगा पर्वत पर मुनफरिद अंदाज में मुहिम जोई की। मारिया कार्डिल ने अपने शौहर के हमरा तारीखी मुहिम जोई करते हुए एक नए और ज़्यादा मुश्किल रास्ते से नांगा पर्वत को सर किया। डेनिस उरूबको वो वाहिद कोह पैमा हैं जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियों को 2 से ज़्यादा मरतबा सर किया है। मारिया कार्डिल ने भी 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां सर करने का एजाज़ हासिल किया। पुलिस जोड़ी ने बर्फबारी, तूफान और इंतहाई कठिन मौसमी हालात के बावजूद एक नया रास्ता मुतारिफ कराया और दियामर की तरफ से नांगा पर्वत पर कामयाब मुहिम जोई की। मारिया कार्डिल ने कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों की इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने बेपनाह मोहब्बत दी। कराची में मार्का हक और पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की मुनासबत से स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स में शूटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती अमले के दरमियान कराए गए, जिसमें अमरीका, रूस, तुर्की, फ्रांस, मलाइशिया, ईरान, चीन, जर्मनी, थाईलैंड, जनूबी कोरिया, इंडोनेशिया, इटली, इथियोपिया और ओमान के सिफारतकारों ने हिस्सा लिया। इवेंट्स में मर्द ख़वातीन के इनफरादी और टीम इवेंट्स शामिल थे। टीम कैटेगरी में अमरीकी कौंसल खाना ने पहली, रूस ने दूसरी और तुर्की कौंसल खाना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मर्दों के इनफरादी मुकाबले में तुर्की के रमजान दोजनी ने फतह समेटी। ख़वातीन में रूस की पेलिना पोपोवा सरफहरिस्त रहीं। तकरीब के मेहमान खुसूसी डीए खान, DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर मकसूद अहमद ने पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स दिए। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला न सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है बल्कि सिक्योरिटी इदारों की महारत और मेहमान नवाजी को भी नुमायां करता है। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।